Hello and welcome. My name is Arjun Vishwanathan and I welcome you to yet another episode of Tipping Point, Dialogues and Transformation. My guest today is somebody extremely interesting and anything much that I may end up saying about him would be inadequate. So I think the best thing to do is directly go over to him and ladies and gentlemen, please put your hands together to welcome none other than and somebody who does not really need an introduction, the indomitable, the humorous, and the amazingly funny Jeeveshu Ahluwalia. Jeeveshu, welcome. Absolutely delighted. Thank you very much, Arjun, for having me over. I've never had an interview with such a tall man, so thank you. Thank you. Jeeveshu, Tipping Point is all about conversations on life and pretty much everything beyond. Now it'd be obviously a little silly for me not to start from the recency of what it is that you do. Your humor and the fact that through many years now, quite a few years, and specifically during the lockdown when things were very bleak, fairly undesirable, you brightened up our days, made us laugh. Where does the humor come from? From the money you give by watching those YouTube videos. Every time you click on it, I make more money, and that makes me very happy. Couldn't agree more. So, I think largely it is, so there are two types of comics. One is people who write jokes which are out of fiction. So, for example, Jeeveshu Ahluwalia, God bless his soul, wherever it is. And he used to make this character like Gajodhar. No, those are imaginary characters. That takes a lot of talent. Because you have to think of something that you've not experienced. The other side of comic is, or other type of comics are, which are observational, anecdotal storytelling. So, for me to deliver a joke, it has to be either lived by me, experienced by me, witnessed by me, or I have to be a part of it in some shape, way or form. So I'm the other part of, or other type of comic. So for me, if you look at it, I don't have any jokes. I am very limited. I'm a guy with zero talent when it comes to writing a joke. All right. I just tell things in a way that people think of, but they can't put it to words. So, for example, if I'm giving a joke about Indigo Airlines, and I remember, and I say that ये काजू बेचने के लिए airlines उड़ाते हैं. Now, every time you buy that काजू 250 रुपए का 200 रुपए का आते हैं, so 20 काजू होते हैं. Indeed. You think of it. I just put it to words. So that's the only difference. There is no joke here. You see, like there is no joke. And comedy is exaggeration of any experience you have. So, तो आपके दिमाग में भी आएगा जब आपने 200 रुपए का 20 काजू खरीदे होंगे, आपको गुस्सा आया होगा. आपने बोला कि इतने इस लायक तो है नहीं, इस क्वालिटी के नहीं है या इतना अच्छा नहीं है. But उसको ट्विस्ट करना ह्यूमर की तरह वो मेरा काम है. That's what I do. So this is where it comes from. And was this something that you naturally possessed while you were growing up or fairly early on, or was it something that you perhaps cultivated also? So I think, so when I was growing up, lack of a lot of resources was one of those things that I lived with. And what happens is, when you don't have resources, you become very angry because you start blaming others, you start blaming situation, people, incident, places, things. Of course you do. Or you start defending it. Now, for defending something, you need to be at a powerful position. When you don't have resources, you anyways have a depleted position. So when you're in a depleting position, you can't defend it. So I'll give you an example. I think I was 10-11 साल का हूँगा. मुझे किसी ने sunglasses या टोपी ला के दी. और पहली बार मैंने टोपी पहनी थी. मैं रात को 8 बजे टोपी पहन के घूम रहा था. मेरे दोस्त ने बोला साले धूप निकल रही है, मैं टोपी छतरी नहीं है. तो I think that was the earliest joke I had, but it wasn't a joke. It was my defense mechanism. Because I wanted to defend कि मैं रात को 8 बजे भी टोपी पहन के घूम सकता हूँ, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मैंने जिंदगी में टोपी पहली बार पहनी है. So true. So I was very proud of it. And I didn't want to take somebody to take away that thunder, that steal away that moment from me. So it's a constant and desperate attempt to be relevant is what makes me come up with humor, and that is what has happened. Every time I went through a bad patch, every time there was something that was not given to me, everything I thought I deserved something never came to me, every time something was snatched away from me, it made me angry and I wanted to defend it in my mind. So humor sort of was building it up. Or I could have been a serial killer, either of those. So like, cheesy. A serial killer for sure not, now that I know you as well as I do. Yeah. But it's also interesting to note, there's humor that is obviously present in lots of people. Yeah. It happens in our everyday life, it happens with
let's say your father or your Yeah. parents or Yeah. my wife, Correct. something Correct. very funny which will make the other person Correct. burst out laughing. But to have that consistency, to be able to make an audience of 300, sometimes 3,000 Correct. in many Correct. cases, to be able to do that in a sustained manner. Now, that clearly is an art or a science, one way or the other, that you have to constantly and consistently build up. How did you manage that transition? So there is no science. That is the worst part of this art form. There is no mechanism behind it. There is no science behind this madness. So for example, music has surrakta. Indeed. There is a science behind it. Indeed. If you do yoga, there is certain level of postures, there is certain level of breathing level that you have to do to get into the best level of attainment of yoga. Comedy is a very executional art form. You can write a very good joke, but delivered very poorly, cannot and will not make that impact. Indeed. It can be one of those santa banta या दो दोस्त थे या दो हाथी थे एक हाथी चीटी वाले jokes भी, which is very basic in structure, but delivered very emphatically can do wonders. All right. So that is one thing I'm very clear of. So what happens is, like you said, everybody has sense of humor. यहाँ पे जो इस कैमरे के पीछे हैं, जिनको होना चाहिए, जो नहीं है, जो पीछे घूम रहे हैं, या वो बंदा खड़ा, ये कहीं ना कहीं किसी 2-3 लोगों के लिए फनी होंगे, guaranteed है. Of course. The transition is drawing room से stage. That of course. हाँ, तो वो जो transition है वो हर कोई इसलिए नहीं कर पाता है because आप भी गाना अच्छा गाते हो, trained singer हो मैंने सुना है, लेकिन आप playback singer क्यों नहीं हो? The transition isn't something. The transition. So it takes just work. If you keep practicing 10 hours a day, you'll possibly be there, right? So जो playback singers हैं, some of them are gifted, like Sonu Nigam, Kishore Kumar, Mohammed Rafi, Mukesh, Arijit Singh and all. But most of them would have to work very, very hard. And that consistent practice is what made me where I am. So for me, when I talk to people, when you said it is refreshing to speak to people over and over again or do this consistently, because I do this on a daily basis. And the other side of comedy which comes natural to me, there are two types of comics again. People who are very serious, very not comic-like in personal space, but they don a role when they get up on stage. मैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी उतना ही जलील करता हूँ लोगों को, उतना ही घटिया महसूस कराता हूँ जैसे मैं स्टेज पे कराता हूँ. तो मेरा वो ट्रांजिशन नहीं है. तो मेरे ख्याल से मैं बाकी के 23 घंटे भी, जब 1 घंटा नहीं कर रहा था स्टेज में, बाकी 23 घंटे में मैं ये गुलूल जुलूल काम कर रहा होता हूँ. So it keeps me relevant, it keeps me sharp. So that goes on stage. It's very easy. And it's also very important to understand one particular thing that I've been very curious about for a long, long time, ever since we were exposed to this whole concept of, watching and streaming your shows and many others. Is do you find humor and laughter in the jokes that you're cracking? I mean, are you finding internally? Are you tickled? Are you? तो मेरे लिए बहुत जरूरी. That's a very good question. If I'm not having fun, if I'm not amusing myself, if I'm not laughing, it then becomes a job. Then though I'm as good as any typist, any stenographer, any accountant, any CA, any lawyer. मतलब अगर मैं रोज वही काम कर रहा हूँ, I'm not able to make myself happy. See, because the comedy, the good part is that if you're having fun on stage, that directly transcends to the audience. They can feel it. Similarly, if they're having a good time, you can feel it. It's a very transactional way of doing it, but very sweet way of having it. Wherein on the other mediums that we might indulge ourselves into, which is like shoots of advertisements, TV serials, movies, the gratitude isn't, or the gratification isn't instant. It isn't there. So you wait. That is why movie can be flops. Shows can't be. Shows shouldn't be. Yeah. Have you ever heard somebody say कि I saw Trevor Noah या मैं बादशाह का कॉन्सर्ट देखेंगे, it was flop. वो ऑर्गेनाइजेशन पे बोलेगा कि वहाँ भीड़ ज़्यादा थी, पार्किंग खराब थी, खाना ठीक था. वो आर्टिस्ट को नहीं बोलेगा. वो जो आर्टिस्ट जो लाइव कर रहा है, it will never deliver flop show. Never. There's no retake. How do you manage to, in a sea of people, where you're obviously looking at multiple faces, how do you manage to figure out how to balance the tempo of your show? I don't. You don't? No, I don't. So what I do is कि मेरा concept होता है जब मैं शुरू करता हूँ, especially when it comes to talking to people and insulting and roast or whatever you may call it. If you always notice, I will always start with self-deprecating humor, which means I will put myself down. So if you're an audience member, if I'm at this level starting, I'll put myself to this level. So when I bring you to this level, you don't feel odd. So that is where I do smart work. But if I was to go on a high horse and just insult you, you feel offended. Indeed. So I don't do that. I insult myself, I insult how I look, I insult about who I am, I insult my lifestyle, I insult my family. So when I take all those things and turn around and make sure that you see that mirror now for yourself, you don't feel bad because now we are level playing field. Well, that's actually a very brilliant aspect. Yeah, So I hadn't thought about it. Yeah. I do this for a living, so not that I've not made mistakes, I have.
And also, I've always said a good comic knows who to talk to. A great comic knows when to stop. Absolutely. You can't keep pushing it. That's bang on, isn't it? Yes, it has to stop. Very interesting, because something about your shows, both on YouTube and now that I've seen you live, now that I've spoken with you and spent time with you, is a very consistent presence of your mother. Yeah. And in many ways, when I've looked at it, we've all laughed, Correct. Associated. My mother-in-law, for example, Correct. has never met you, Correct. leave alone Mamiji. Ah. But she's already in love with Mamiji. Correct. Because it resonates with some aspects of how our own mothers or aunts or buas or Correct. chachis. But it also struck me is that Mamiji is therefore a very significant part of your life. Yeah. Walk us through that journey. So, there is two misconceptions people have, that I insult my mother. That is one. That's surprising. Two is that I don't like my mother. Okay. So in both scenarios, I want to correct it. Every time I make a joke about my mother, I am at the receiving end. So she's never the butt of the joke. Never. She's the reason for it. I am the butt. Secondly, why mother works wonderful is कि if we were to sort of equate it, अगर मैं रिलीजन की बात करूं तो अगर मैं हिंदुइज्म की बात कर रहा हूं और आप मुस्लिम हो तो हमारा धर्म बहुत अलग हो जाएगा. बिल्कुल. लेकिन No apple to apple. अगर मैं भगवान की बात करता हूँ, आपका और मेरा भगवान सिमिलर डिलीवरेंस पे आता है. Indeed. तो माँ वो भगवान के लेवल पे है. तो जब हम भगवान माँ की बात करते हैं तो हर किसी की माँ डिफरेंट शेप, डिफरेंट साइज, डिफरेंट फॉर्म, लेकिन होती वो माँ ही है. चाहे वो हिंदू की माँ हो, चाहे मुस्लिम की, चाहे वो सिख की, ईसाई की, या देश की किसी भी कोने से हो, वो किसी अंग्रेज की माँ होगी, वो वही माँ होगी. वो उसको उतना ही बोलेगा. अगर कोई अमेरिकन अगर 140 किलो को होकर घर आपके साथ है, उसके उसको आज भी बोलेगी कि तू कमजोर दिख रहा है. वो इंग्लिश में बोलेगी लेकिन बोलेगी वही. सो what I did was कि I sort of sidestepped one step of the process of treating my mother, but I started talking about my mother, which means if I talk about God, if I talk about for example शिव जी, और आप गणेश में विश्वास करते हो या आप अल्लाह में करते हो या आप जीसस में करते हो, मतलब भगवान अच्छा है, तो आप उसको निगेट नहीं कर सकते भगवान अच्छा है. You can't disagree with हाँ करें. और मैं बोलता हूँ कि भगवान की पूजा करते हो तो आप ऐसे करो या ऐसे करो, पूजा तो कर ही रहे हो ना. तो अब मैं बोलता हूँ कि हम नवरात्रे रखते हैं तो आपका रमजान होगा या लेंट होगा या आपका सरदारों पर चले होगा, कहीं ना कहीं वो कनेक्ट करेगा. लेकिन अगर मैं ये बोलना शुरू कर दूँ कि मेरे नवरात्रे बड़े हैं और आपके नवरात्रे छोटे हैं, वहाँ डिसएग्रीमेंट आ जाता है. इसलिए मदर टॉपिक वॉज अ वाइडली एक्सेप्टेड टॉपिक बिकॉज आई वॉज टॉकिंग अबाउट समथिंग विच वॉज एन एंड गोल. It wasn't the process towards the mother. So that was a very smart way of doing it. I think second portion that works wonders is, or why it has worked for me, I've been with my mother for 46 years. So the longest known relationship I've had other than my own self is my mother. your mother. तो जब कॉमेडी शुरू करते हो तो आप क्या करते हो, आपने जोक्स लिखना शुरू करते हो दूसरों के बारे में. लेकिन वो एक्सपीरियंस मैंने बोला था, मैं उन लोगों में से हूँ जो इमेजिन नहीं कर सकता. मैं उन चीज़ों के बारे में बात करता हूँ जो मैंने ज़िंदगी में जी हैं, ऑब्जर्व करी हैं, इन सिचुएशन से मैं निकला हूँ. तो मेरी माँ मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा रही है, सबसे बड़ा रिश्ता है, तो उसको निगेट नहीं कर सकता था. तो आसान था मेरे लिए. तो मैंने इंटेंशनली नहीं किया, बट मेरे लिए बहुत आसान था वो, कि वो मोमेंट मेरे को खुशी भी देता है, फ्रस्ट्रेट भी करता है, सुसाइडल भी बनाता है, खुंदक भी दिलाता है, मन करता है ग्लास फेंक के मार दूँ, बाल नोच लो अपने. होता है ना अपने माँ बाप के साथ कि हे भगवान इस औरत को समझ में क्यों नहीं आता है, या अपने बाप को देख क्या बोले थे सारे बूढ़े पागल हैं. यू ऑलवेज हैव सेड दैट इन योर माइंड. आप मुंह पे जाके नहीं बोलते लेकिन आप सोचते रहे. तो वही तो वो मेरे लिए बहुत आसान था. मैंने जानबूझ के नहीं किया, बट दिस केम नेचुरली. But has Mamiji seen the videos? मेरी माँ को ये था कि जब वो वीडियो देखती थी वो ये बोलती थी मैं तो ऐसे नहीं हूँ. एंड मैं वही तो बात कर रहे हैं कि आपकी गलती कभी होती ही नहीं है ना. जैसे मैं आपको आज बताता हूँ, और उस दिन मैं अपनी माँ से बात कर रहा था. अब लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन. आपके पास घर में 2 कुक हैं जी, उनमें से आपके पास आता है एक कुक आती है, वो बोलती है कि अर्जुन भैया मेरे को ना दाल बनानी है, क्या भाभी खाएंगी? तो आप क्या बोलते हो कि जाके उससे पूछ लो. बिल्कुल. तो आपकी बीवी का क्या जवाब आना चाहिए अगर वो पूछती है कि भाभी आप दाल खाएंगी? Yes, no. हाँ या ना. मेरी माँ का जवाब था क्या मेरे मुंह पे जिप लगी हुई है. अब इस जवाब को सेंस नहीं है. मुझे लगता है जवाब बहुत ही घटिया है. मेरी माँ को लगता है जवाब में कोई गलती नहीं है. And what's your relationship with your mom like? So it's a very bittersweet. I think since मैं उनके साथ 24 घंटे रहता हूँ, तो जैसे आपके माँ बाप है राइट. अब आपके माँ बाप के साथ आप रहते हो तो आप दिन में कितनी बार बात करते हो? Once every day. Once every day. मैं साल के 365 दिन. कभी लड़ाई होती है 365 दिन में एक बार? कितनी बार होती है?
50 बार तो होती होगी क्योंकि फोन पे ना फिजिकली होता तो 365 से 50 क्या परसेंटेज है? तकरीबन 25% है। 25 में 10% ले लो, हाँ 10%। 14-15%। 14 तो ये 15% मेरी रोज के हिसाब से है। आप समझ रहे हो, क्योंकि मैं उस औरत में उतना रहता हूँ। तो आई थिंक लड़ाइयाँ भी नहीं, आई थिंक वो लार्जली ना वो इरिटेशन आ जाती है। अब एक ऐसा तो नहीं है कि मैं अपनी माँ को मार रहा हूँ, मेरी माँ मुझे मार रही है, ऐसा तो नहीं होता। उनका होता है जैसे मैं बात ही नहीं करूँगी, 10 सेकंड तक होता है कि मैं बात नहीं करूँगी, 11वें सेकंड फिर वो बता के मुझे बता देते क्यों नहीं बात कर रही है वो। जैसे कल मैंने उनको, मैं जब यहाँ आया देहरादून, मेरा मम्मी जी मेरे एक जैकेट आएगा, जब वो आएगा तो उसको रख लेना, एक रिप्लेसमेंट आएगा उसको रिप्लेसमेंट वाला दे देना। हाँ मुझे पता है, तो 50 बार बता चुका है। मैं दोपहर को सो के उठा, आरजीओ वाले के फोन आ रहे थे 3-4, मैंने उसको वापस फोन किया, कह रहा साहब आपके यहाँ तो जैकेट देने गए थे, आपकी माँ ने बाहर से भगा दिया मेरे को। मैं भगा दिया मतलब? तो आई कॉल माय मदर, ऐसे क्यों भगा दिया? कह रहे तूने बोला तो जैकेट दे के जाएगा तो ही लेके जाएगा। मैं बोला नहीं, मैंने बोला था जैकेट लेके आएगा एक और जैकेट दे के जाएगा एक। ये क्या चल रहा है, को बोला था ये उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर था। तो बेचारा खड़ा रहा डिलीवरी वाला। देन शी कॉल्स बैक इन 30 सेकंड्स, राजू तू जो बोला ना गलत है, मैं तेको अब बताती हूँ हुआ क्या था। नाउ देयर इज अ जस्टिफिकेशन कि उसने घंटी बजाई। मैंने बोला भैया क्या चाहिए? उसने बोला मुझे जैकेट चाहिए। तो मैंने बोला जैकेट लाए हो? उसने बोला नहीं मैं नहीं लाया। तो मैंने फिर क्या लेने आए हो? उसने अभी बोला कि जैकेट लेने आया था। फिर क्वेश्चन चल रहा है, कह रहे फिर मैंने जैकेट ली। मैंने विशाल जो मेरा डोमेस्टिक है उसको बोला कि जाके जैकेट, जिस वो गया विशाल जैकेट लेके वो जा चुका था। मैं कि मैंने आपसे पूछा भी नहीं था ये क्या क्यों कॉन्वर्सेशन करने वाली। फिर मैंने वाले से मैं बात करते 15 मिनट के दोबारा फोन आता है, मैं तो एक चीज बताना भूल गई। उसने आके मुझसे ओटीपी मांगा था, तूने फोन नहीं उठाया। अब हम ब्लेम करने लगे, मैंने बोला भी नहीं था आपकी गलती है। मैं अच्छा मम्मी ठीक है मैं कल बात कर दूँ। फिर 10 मिनट बाद फिर फोन आता है, कहती एक और चीज कौन सी वाली जैकेट देनी? मैं मम्मी मैं कितनी जैकेट पड़ी? कहती एक। मैं तो किसी की भी दे दो, शरीर के लोगों के बदन से उतार के दे देना उसको जैकेट, कौन सा पसंद करे। तू गुस्सा हो रहा है, तूने खाना खाया? नहीं खाना खा ले तेरा मूड हमेशा खराब रहता है। सडनली वो मेरा मूड हो गया, ये जैकेट आजियो वाला ले आया था, अब मैं उल्लू का पट्टा बैठा हूं वहां पे, क्यों मेरी गलती, मैंने खाना नहीं खाया था। मैंने 50 बार समझाया है और करो डाइटिंग। और जैकेट वाली तो बात भी नहीं हो रही अब। तो अगर ये रोज करोगे आप तो कोई ना कंटेंट तो मिल ही जाएगा ना। तो my relationship with my mother is very clear. If my mother wasn't alive, I would have been a drug dealer or a dead man. I'm very clear of it. But at the same time, I'm not obligated towards loving her. I choose to love her. Of course. That's where it ends. So that's my relationship with my mother. I don't think she's done everything right, but whatever right she has done has worked for me. Of course. She cannot be an example of everything good. No person is. So she also acts as a warning sign of things not to be done. That's what I wanted to get into. I know Jeeveshu, and I'm very sorry. Your father passed away very early. 6th December will be 42 years. 42 years, yeah. When you were 4. I was 4. My brother was 6 months, yeah. It's been your mother to Yeah, the largest degree. Yeah. Walk us through those times. What were those times like, and how have they perhaps shaped the Jeeveshu Ahluwalia that we know today? I think if my father was alive, I would have been an absolutely arrogant asshole. क्योंकि जो चीज़ आपकी बात है उसको to be taken for granted and घमंड करना बहुत आसान है। अब हम इस घर में बैठे 600 गज का घर है, 3 बेडरूम है, इतना बड़ा ड्राइंग रूम है। लोगों के घर नहीं होते इतना बड़ा ड्राइंग रूम है इस घर आगे। लेकिन हम क्या रोज घुसते हुए उतना ग्रेटिट्यूड फील करते हैं सर में? नहीं करते। पहले दिन करोगे जब घर देखोगे, दूसरे दिन थोड़ा और कम, तीसरे दिन सोचो मैं 46 साल से वो जिंदगी जीता आ रहा हूँ। तो माई इम्पैक्ट ऑन हैविंग दैट sensibility given to us has reduced, diminished. I don't feel the lack of my father not being there, so that role has diminished to a large extent. But at the same time, I think it is also diminishing the fact that my mother has worked very very hard, because उनको मैं अब 25-30 साल से जब से मैं कमा रहा हूँ तब से वो घर पे ही हैं. But to answer your question, I think how it shaped up was कि if he was alive, I hope I would have been a better person, getting inspired by him. Correct. The first time, if you remember, about 6 years back, I bumped into you at Delhi airport. And then I think immediately a week after that, I bumped into you at Bombay airport. Correct. For me, that was a fanboy moment. Correct. Now, maybe I was a certain age at that time for me to immediately express the kind of giggly admiration that yesterday, for example, I saw you being the center of attraction. Correct. When did you realize that, boss, I think people know me? So,
किसी भी आर्टिस्ट की लाइफ में ना 2-3 पॉइंट्स होते हैं, या तो पैसा आ रहा होता है, द इमीडिएट सक्सेस मेक्स यू थिंक दैट यू फेमस, पीपल स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग यू, सॉ फॉर अ पिक्चर और an autograph, राइट? आई स्टिल रिमेंबर पहली बार थाईलैंड शो करने गया था, और थाईलैंड हर जगह पे ना, हर देश में, हर सिटी में एक जगह होगी जहाँ पे खाने की बहुत ईटरीज का एक जमावड़ा है, देयर इज अ क्लस्टर ऑफ शॉप्स एंड रेस्टोरेंट्स, राइट? So I was sitting there, it's like a Chinatown या Bangkok में, कोई तो एक जगह पे ना बैठा हुआ था, and there's a couple which is going, and the woman is wearing a chura, newlywed couple, they were for their honeymoon, which still beats me कि why would somebody gone to Thailand for honeymoon? like अपनी सब्जी लेके आप होटल में जा रहे हो, कह रहा भैया हमारे पास चिकन है, कहता बढ़ गया चिकन, मैं घर से बैंगन लेकर आया, just this, and she stopped, and the man stopped, he said, are you जीवांशु? मैं एक तो नाम गलत दिया जाहिल आदमी, बट उसे जीवांशु बोलना मुझे लगा कि बैंकॉक मुझे पहचाना है, मैं और बस भाई आज सब तभी से बात करेंगे भाई से। फिर मैं वहाँ से उठा, 140 किलो का वजन, शरीर उठाया अपना जैसे भी मर्जी, और मैं शायद वो बनियान खरीद रहा था, वो श्रीलंका वाला जो थाईलैंड की होती है, नाटक 100 भाट या 200 भाट, एनीवेज, and then turn back and they come to me and say, can we get a picture? That was my first moment. I'm still friends with them. That was the first couple who ever recognized me out of my country. मतलब इंडिया में तो क्या ही पहचानेगा कोई, उस टाइम तक लेकिन थाईलैंड में अगर किसी ने मुझे पहचान लिया था, there are a lot of moments which have stood out. Like I still remember there was this show I was doing गुड़गांव में, सामने एक लड़का आता है और वो 500 का नोट ना बीच शो में ऐसे मेरे सर के ऊपर वार के पीछे डीजे को ढूंढ रहा था, ऐसे नजर उतार के, and then वो बहुत लंबा चौड़ा इंसान था, मेरे सामने वो राइट में जाके खड़ा हो गया, वो रो रहा है बस मुझे देख के, और मैं जोक भूल गया, मैं ये क्या कर रहा है ये आदमी, एंड देन शो खत्म हो तो उसके पाँव छुए, वो झुका हुआ आदमी पाँव छूते में मेरे से ज़्यादा लंबा था, तो मैं था ये तो सीन थोड़ा ख़राब सा है। सो देयर आर लॉट ऑफ मोमेंट्स लाइक दैट। आई स्टिल रिमेंबर आई वाज डूइंग अ शो इन मेलबर्न, एंड मेलबर्न में मैं कुछ 100 किलोमीटर आगे कुछ वॉलन करके जगह अपने दोस्त के यहाँ रुका हुआ था मैं, वहाँ से कोई गंदे से सड़े से DFO वाले मॉल में गए थे, मतलब कतई घटिया, मतलब कुत्ते भौंक रहे थे, और मैं चल रहा था पीछे से आते मैं भाई साहब इतना गंदा नाम तो मेरा ही लिया हुआ है इसने, पराठे देखे लड़की भागती हुई आती ऐसे दूर से, मैं कर ले चुड़ैल, मैं ओके, बट हाँ मतलब these are some standing up moments that it makes you wonder कि या तो काम ज़्यादा आने लग जाए आपके पास, लोग रिकग्नाइज करना शुरू करते हैं, या नो पिक्चर के बारे में बोला, so that was a standout moment जिसे मुझे लगा, and that was I think what 6-7 साल पहले, 7-8 साल पहले, 6-7-8 साल पहले टाइम्स, I wouldn't remember. How did this whole concept, you've been in movies also, Yes. Films have increasingly entered your life. How did that kind of happen? So I think होता है कि लोगों को रियलाइज नहीं होता YouTube बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप YouTube खोल के देखिए हर गधा बड़ा वीडियो बना रहा होता है, आज मैं सुबह उठा, आज मैंने हगाया, आज मैंने सुसु किया, आज मेरी माँ मर गई, मेरा बाप को जमींदार उठा के लेकर चरस बेचने, कुछ भी बकवास चल रही थी, but that also enables you to be visible to places and people that you may not have direct access to. Absolutely. How do you know Karan Johar is not watching YouTube? He is. How do you know Shah Rukh Khan is not watching YouTube? He is. So ऐसी किसी एक शो एंड तो किसी भी आर्टिस्ट का from a stand-up standpoint, a natural progression is to get into acting. Natural progression. So आप किसी भी बड़े stand-up artist को उठा के लेते लीजिए worldwide, they've always gone into acting, always. That is a natural progression because acting gives you bigger scale. Of course it does. Like I still remember I was talking to वीर दास करके कॉमिक है, Of course. उनकी एक मूवी थी अमित साहनी की लिस्ट, सुनी आपने? सुनी भी नहीं, आप शक्ल से पता चल गया नहीं सुनी, हाँ एग्जैक्ट, 3 दिन उतर गई थी, 3 दिन हॉल से उतर गई थी, एंड दिस इज व्हाट ही वाज सेइंग, स्टिल वो 5 करोड़ लोगों ने देखी होगी, या 4 करोड़ लोगों ने देखी होगी, 2 करोड़ लोगों ने देखी होगी, या अगर वो मूवी टीवी पे भी आ जाती है, 172 कंट्रीज में जी टीवी चलता है, अगर 10,000 भी लेके चलो तो भाई 17,20,000 लोग हैं, इतनी टिट्टे बेचते बेचते मेरी उम्र निकल जाएगी। Absolutely. So just the exposure on that level is heavy. So how did movies happen? किसी एक शो में मुकेश छावड़ एंड कास्टिंग एजेंसी का कोई एजेंट था, Okay. he called me for तमाशा, एंड मेरे को जब पहली बार फोन आया कि हम साजिद नाडियाड वाला ग्रैंडसन के ऑफिस से बोल रहे हैं क्या आप अंधेरी में आ जाएंगे, मैं चला चल किसी और का काट फोन रहे, तो देन उसका फोन आया कि आप भाई साहब समझ नहीं रहे आप आ सकते हैं, तो मैं गया मुकेश छावड़ एंड कास्टिंग एजेंसी, एंड वहाँ पे वो कह रहा सर मैंने आपको उस दिन शो देखा था, बड़ी बेइज्जती करते लोगों की, मैं भी शो पे था, मेरी भी आपने बड़ी इज्जत उतारी है, जो भी उसने कुछ बोला, आई डोंट रिमेंबर, उसमें बोला ऐसे ऐसे रोल है, 5-7 मिनट बात हुई, कह रहे ठीक है आप जाके मिल लीजिए, मैं गया साजिद नाडियाड वाला ग्रैंडसन के ऑफिस, वहाँ पे
टॉप फ्लोर में अंदर घुसता हूँ तो ऐसे इतना ही बड़ा दीवार पे पूरा शीशा है लाइक एल शेप अंदर घुसता हूँ रणबीर कपूर सिटिंग ऑन द लेफ्ट इम्तियाज अली सिटिंग ऑन द डेड लाइक सेंटर एंड रणबीर कपूर लुक्स ब्रिलियंटली ब्यूटीफुल राइट उससे सफेद जूते सफेद जीन्स कार्गो जैसा सफेद शर्ट सफेद जैकेट सफेद टी शर्ट सफेद कैप जस्ट लुक ब्यूटीफुल लाइक मतलब मैं उससे पप्पी कर लेता उसके मुंह पे एंड he gets up Imtiaz Ali says Ranveer चड्डा के ले the row the row so Ranveer Kapoor gets up he takes his hand and says hi my name is Ranveer Kapoor मैं क्या बेइज्जती कर रहा है यार मैं hi my name is Jeeveshu कह रहा hi good to meet you I'm so happy to sit मैं कह मेरे वहाँ चल रहा है ये तो रणवीर कपूर है because हम वो कहते हैं जो देखता है वो देखता है इम्तियाज अली मे बी एन इक्वली बिगर डायरेक्टर लेकिन उसकी शक्ल का रेजोनेशन हमारी लाइफ में इसलिए नहीं है क्योंकि हम वो डायरेक्टर है लेकिन कमाल आर खान आपके सामने से निकल जाए आप प्रॉब्ली 1 मिनट की सेल्फी ले लोगे उसके साथ इम्तियाज अली निकल जाए तो नहीं लोगे ऑब्वियसली इट्स अ बैड कंपैरिजन बट जो रणवीर कपूर ने बोला हाय माय नेम इज रणवीर कपूर में आई वाज वन ऑफ दोस राइट एंड दे सेड कि चाटा के रोल के लिए देन रणवीर कपूर सेड कि अच्छा इम्तियाज आई विल लीव and he shakes my hand because I look forward to work with you and he leaves so he gives me like a bundle of like a full bag like a full printout of script कहते मुझे 1-2 सीन करके दिखा दीजिए मैंने रीड आउट किया उसमें ऐसे नहीं ऐसे करो ऐसे नहीं ऐसे करो ये बात है 5 मिनट सर कि बाहर जाके आप जो एडमिन है या लॉजिस्टिक्स है उनसे बात कर लेना आपको कितने पैसे चाहिए मैं इसके पैसे मिलेंगे मैं क्या बात कर रहे मैं ये तो बहुत अच्छी बात है मैं बाहर गया उसने बोला आप शायद 5,000 रुपए देंगे रोज के 10,000 रुपए मैं रोज के 10,000 रुपए एंड आई वाज मेकिंग मच मोर बट आई वाज सो स्टार स्ट्रक तो मैं बोला 10,000 रुपए 10,000 रुपए फिर मैं आगे गाड़ी में बैठा वो घर आ गया अगले दिन जब 2-4 महीने बाद जब शूटिंग शुरू हुई वहाँ पहुंचा तो दीपिका पादुकोण रणबीर कपूर को एक सीन था जहाँ पे कुछ तो वो रिंग वगैरह एक्सचेंज कर रहा है एंड रणबीर कपूर आता है एंड ही सेड कि remember he's telling me remember we met मैं कि क्या आदमी है तू क्या बेइज्जती करता रहता है remember I met you do you remember you met me तो मैं कि रणबीर मैं बाहर जाके सिगरेट पी रहा हूँ कह रहा कौन सी है मैं डन कह रहा यार मैं डन उसके वो दिन राज करने ने भाई जब भी मतलब सिगरेट पी रहे होते हैं या जब मतलब कुछ बकवास ही कर रहे होते हैं बट आई वाज सो स्टार स्ट्रक विद इट बिकॉज द गुड पार्ट इज आई वाज नॉट फ्रॉम बॉलीवुड सो आई वाज नॉट दैट इम्पैक्टेड कि मैं पागल ही हो जाऊं आई एडमायर द गाय डोंट टेक मी रॉन्ग आई लव द गाय बट मैं ऐसे नहीं कि पाँव धो के पीने वाले में से हूं दूसरा ये मेरा प्राइमरी धंधा नहीं है तो मेरी ग्रीड नहीं थी कि मेरे को लल्लो चप्पो करके आई हैव टू यू नो कम एंड किस समबडीज एज टू गेट दैट वर्क तो अगर फिल्म मिली ठीक है वरना कॉमेडी से मेरा धंधा बहुत अच्छा चल रहा है बहुत बड़ी गाड़ी चलाता हूँ बहुत बड़े घर में रहता हूँ नहीं मिलेगी तो मेरे लिए वो सेंस ऑफ डेस्परेशन नहीं था इट वॉज सेंस ऑफ अचीवमेंट बहुत अलग अलग चीज़ें होती है जब आप बॉम्बे में जाते हो रोज 1 लाख लोग आदमी उतरता है टू बी एन एक्टर इन बॉम्बे और ये जो इवेंट वाले हैं या जो मूवी के जो शोज वगैरह आते हैं तो बहुत दे मैनिपुलेट दीज गाइज एक्सप्लॉइट देम बिकॉज अब जैसे अब कैसे जैसे यहाँ पे कैमरा मैन है कुछ लोग वेडिंग फोटोग्राफर्स होते हैं कुछ लोग पोर्ट्रेट बनाते हैं जो इज्जत आप इस बंदे को दोगे जो आपकी वेडिंग का फोटोग्राफर है उसी आदमी आप सेम वही इज्जत आप शिमला में जो आपकी सनसेट के साथ फोटो खींचता है उसको दोगे नहीं दोगे ये फैक्ट है ठीक है वो तो होता क्या कि अगर इस दोस्त का ये जो कैमरामैन है या जो फोटोग्राफर है या जो वीडियोग्राफर है अगर ही सेज कि बस ये तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ बाकी मेरा धंधा यहाँ चलता है वो डेस्परेशन नहीं आएगी और he will make conscious choices to claim whatever he wants to claim and claim it as an achievement कि बॉस रणवीर कपूर के साथ काम किया बिकॉज मैं अच्छा हूँ ना कि मुझे जो काम है मैंने कर लिया तो बहुत अलग अलग चीजें इसका रिजल्ट एक ही है तो जब मैं वहाँ गया मैं रणवीर कपूर के साथ काम कर रहा था दीपिका के साथ काम कर रहा था मुझे तो बहुत अच्छा लगा they made me feel like an equal that is how the first movie came जब मूवी खत्म हो गई मूवी अब होता कि मूवी में एडिट्स होते हैं मेरा रोल बिल्कुल उड़ गया मैं फिलीपींस में था एक शो के लिए और मैंने जिसमें मूवी रिलीज हो रही थी मैंने तो देखी नहीं थी भाई आई हैड सच अ बेसिक रोल लेकिन मैं फीचर हो रहा था तो मैंने फेसबुक पर डाला लॉन्चिंग टुडे शिट लाइक मूवी रिलीजिंग 12 घंटा 1 सेकंड मतलब मेरा जो रोल था वो नीचे से ऊपर जो नाम आता है ना एंड में उससे छोटा रोल था जैसे नीचे से टाइटल था इंट्रोड्यूसिंग जीवेशु यहाँ नीचे ऊपर जाकर अगर 1.5 सेकंड में नाम आएगा तो पौने 1 सेकंड का रोल था मेरा पूरी मूवी में मेरे साथ और भी लोगों का कटा जो उस फ्रेम में थे जो उसके दोस्त प्ले कर रहे थे फिर सेकंड मूवी मुदस्सर अजीज करके बंदे जिन्होंने बनाई थी दूल्हा मान जाएगा ऐसे एक मूवी और
ही कॉल्ड मी कि एक साउथ इंडियन आदमी का रोल है जो या मुस्लिम आदमी का रोल है और मैंने आपकी वीडियो देखे, वेरी बिग फैन, आप मुझसे आके मिल सकते हो। मैं ठीक है, तो मैं गया उनसे मिलने, तब हैप्पी फिर भाग जाएगी, मैं फखरुद्दीन कुरैशी का रोल मिला था। दैट्स व्हाट आई डिड, दैट रोल केम एज इज, लेकिन वो मूवी बढ़ गई, वो किसी ने देखी ही नहीं। तो मैं फुल चौड़े में जाके, मैं मेरे ख्याल से वो किसी बहुत ही वाहियात प्लेटफॉर्म, जियो सिनेमा किसी पे है, वो एक ऐप मैंने डाउनलोड करी हुई है। मैं जैसे किसी बैठा था, हाँ खुद ही का रोल प्ले करके देख रहा है, मैं क्या मतलब ऊपर चाहता हूँ देख लेगा था। एंड देन थर्ड वन इज बंदा सिंह। हाँ, so these guys called, the director called, he said, I've seen your movies and I've seen your work like YouTube पे. So as I was saying, YouTube is a big feature for some, it's like an audition that you're giving in somebody's bedroom without being there. अब अगर क्या नाम है दोस्त आपका? तेजस्वी का फोटोग्राफ्स, राइट? ये सोशल मीडिया पे डालते हैं या कहीं भी डालते हैं। And what kind of photographer are you? I'm basically versatile. Versatile, right? So for example, he does wedding, he does wild cafe, wildlife nature, events, whatever. And he puts it on his Instagram. In my personal space, sitting on the toilet pot, he has reached me. He has indeed. So it's a personal way of showcasing कि सर मेरा काम देखिए आप। जी। तो वही काम वो देख रहे, तो YouTube की वजह से मेरे ख्याल से मुझे मिला। So that is very clear of two things. One, कि कॉमेडी की वजह से मुझे काम मिलता है, उसकी वजह से मुझे कॉमेडी नहीं मिलती। Exactly. So which means कि मेरा सेंस ऑफ डेस्परेशन नहीं होता है। जब मुझे कोई बोलता है कि आपको ये कर, मुझे एक बार आया था, 2-3 बार ऐसे रोल आए कि आपका ऐसे वाला रोल है, एक मूवी बना रहे हैं जिसमें एक लड़का लड़की की शादी हो जाती है और आपका जेठ जी का रोल है, लेकिन आपको सेक्स नहीं करने देते पूरी पिक्चर में। क्या बकवास है ये क्या बकवास है। तो या फिर एक काम वाली भाई, उसका पल्लू नीचे गिरता, मैं क्या ये कैसे रोल आ रहे हैं। लेकिन मेरा धंधा उससे चलता नहीं है। हाँ, तो आई कैन से नो। एंड दूसरा, since I'm not from the industry, I don't have a sense of desperation or a measurement. हाँ, अब एक रणबीर कपूर के लिए एक प्रेशर होगा कि रणबीर सिंह अच्छा कर रहा है, मेरे को वो कॉमेडी में होता है, मेरे को वो एक्टिंग में नहीं होता। तो जैसे मुझे अभी किसी ने बोला कि एक मूवी के लिए रोल कर रहे हैं, पहला सीन आपका है, सिर्फ पहला, और पूरी पिक्चर में डन भाई आएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को 50,000 मिनट का रोल मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। जैसे मेरे दोस्त है भुवन वाम, इंडिया के नंबर 1 और 2 नंबर यूट्यूबर्स आते, बीबी की वाइंस, वेरी स्वीट गाय। His manager called Rohit, he said कि जेवेशु भाई हम शो कर रहे हैं ढिंढोरा करके, पहली वेब सीरीज बना रहे हैं जो हम यूट्यूब पर डाल रहे हैं। पहले एपिसोड में 5 मिनट का रोल, आओगे? मैं भाई पहुंच जाए। फ्राइडे सुबह फ्लाइट पकड़ी, वहाँ पहुंचे, सारा दिन शूट किया, शाम को बड़ी गप्पे मारी, दाल चावल खाए, सैटरडे सुबह की फ्लाइट पकड़ी, घर आ गए। मेरे को इतना कोई ऐसा रोना नहीं था कि भाई नहीं 20 एपिसोड से नीचे का तो मैं तो नहीं आऊँगा, कोई बकवास नहीं मेरी जिंदगी में। आप मुझे 1 रुपये का रोल दोगे तो भी मैं करूँगा, और 1 लाख का दोगे तो भी करूँगा, 1 करोड़ दोगे तो भी करूँगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उससे मेरा धंधा नहीं चल रहा है, मेरा धंधा कॉमेडी से चलता है। वेरी क्लियर अबाउट इट। Jeeveshu, now this whole conversation around transformation and transition. Now, you started off your professional career in the ITES segment. No, I started with door-to-door marketing. Door-to-door marketing. Then मैं मूवी हॉल में 5 रुपए की सीट बेचता था। Oh, is it? हाँ, फर्स्ट PVR जो इंडिया में खुला था, मैं उसमें 5 रुपए की टिकट बेचता था। फिर मैंने 5 रुपए की टिकट ब्लैक करनी शुरू कर दी। 2-2.5 महीने 17-18 हज़ार रुपये कमाए। फिर मुझे एक रात को पुलिस वाले आए, गाड़ी में उठा के लेके गए, 30 लोगों ने PVR की साकेत की पार्किंग में मेरी पिटाई करी, नौकरी से निकाल दिया। फिर मैंने पिज़्ज़ा हट ज्वाइन किया, मैं वेटर और डिलीवरी बॉय था 3 साल, आगरा, जयपुर और दिल्ली में। फिर वहाँ से नौकरी छोड़ी मैंने। रूबी ट्यूसडे करके रेस्टोरेंट था, उसमें वेटर बनने के लिए, और वो खुला नहीं एक टाइम, मतलब 1 महीना डिलेड था। तो लोगों को लगता है कि 1 महीना डिले कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं 1 महीना बिना सैलरी का था, और मेरा भाई 7th में था, मेरी माँ घर पे थी, तो खाना कहाँ से लाएंगे। तो 30 रुपये रोज़ मिलते थे डोर टू डोर मार्केटिंग में। जब मैं PVR में काम करता था तब 2750 रुपये मिलते थे। फिर मैंने जब चोरी शुरू करी, टिकटें ब्लैक करनी शुरू करी, तब मैंने 17-18 हज़ार रुपये कमाए थे, जो पुलिस वालों ने मारा। और मेरे ख्याल से इलाज में मेरे को 2-4 हज़ार रुपये लगे थे, सरकारी अस्पताल में कराया था मैंने। और तो मेरे सर पे 27 कार है, वो जो लट-वट मारे थे ना, उससे खून निकल रहा था। उसके बाद वो 13-14 हज़ार रुपये पड़े थे मेरे पास, जो बचे थे इलाज के बाद। उससे मैंने घर में कूलर लिया था। और फिर नौकरी लगी पिज़्ज़ा हट में, वहाँ 3050 रुपये सैलरी थी। अगर आप डिलीवरी बॉय हो या वेटर हो तो आपको 450 रुपये का स्टाइपेंड नहीं मिलता, विच इज़ कॉल्ड फ्रंट ऑफ द हाउस। तो क्यों टिप मिलती है आपको। तो और अगर आप बैक ऑफ द हाउस या मिडल ऑफ द हाउस में हो, जैसे किचन में हो या ऑर्डर टेकर वगैरह या होस्ट हो, तो आपको 450 रुपये फालतू मिलते हैं। तो 3500 रुपये सैलरी होती थी। तो रूबी ट्यूसडे में मेरी 4500 सैलरी थी, 1000 रुपये का जम था।
मैं तो जिंदगी बन गई, मैं तो पता नहीं क्या कोठे बना लूंगा इससे। तो रूबी ट्यूसडे पहुंचा तो उन्होंने वो खोला नहीं था रेस्टोरेंट एंड दे सेड यू कैन जॉइन इन फरवरी। जनवरी 16 को नौकरी छोड़ी थी, फरवरी 20 को ज्वाइन करा रहे थे। तो ऐसे तो 1 महीना बिना सैलरी के कैसे रहूँगा। तब मेरे एक दोस्त की गर्लफ्रेंड थी जो एक लोकल नॉर्मल परचून की दुकान पे मंडे ब्रेड लेने गया था। उसने बोला क्या कर रहा है राजू आजकल? मैं राजू वेला घूम रहा है। तो उसने बोला जी में काम करेगा। तो मैंने जी कंपनी का नाम नहीं सुना था, मैं जी टीवी होगा। सरकारी स्कूल से पास आउट था, जी सुना भी नहीं था मैंने। मैं हाँ बिल्कुल करूँगा। कहती गुड़गांव में ऑफिस से चले जाना। बस पकड़े पहुँचे, वो जनरल इलेक्ट्रिक थी कंपनी, ITS BPO सेक्टर था, मैंने सुना भी नहीं था। और खूबसूरत लड़कियां देखी, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं ऑल बॉय स्कूल से पढ़ा हुआ, सरकारी स्कूल। आई वाज वन ऑफ दोस गाइस, आई वांट टू बी फ्रेंडशिप विद यू। मैं तुम्हारी दोस्ती बनना चाहता हूँ। मैं इतनी लड़कियां, उन्होंने बोला कि हम आपको 5300 सैलरी देंगे। Wow. मैं ये तो बस जिंदगी बन गई। Which year was this? दिस वाज 1999-2000। All right. और फिर कट टू 16 years later आई वाज अ डायरेक्टर। Wow. एंड देन वो छोड़ के भांड। दैट इज माय करियर प्रोग्रेस। What prompted you to move on from something that's fairly established? आई थिंक व्हाट प्रॉब्लम टू मूव ऑन वाज नथिंग। आई थिंक मेरा हमेशा से मानना रहा है कि जिंदगी में जो प्रोग्रेस होती है या जो लर्निंग होती है वो ग्राउंड रूट लेवल से अगले लेवल तक होती है, उसके बाद सब कुछ ग्लोरीफाइड है। तो जब मेरे प्रोफेशन में एक एजेंट जो फ्रंट लाइन एग्जीक्यूटिव है, या जैसे आप वोडाफोन फोन करते हो, जियो कस्टमर सर्विस पर फोन करते हो, जब आपको फोन उठा ना, थैंक यू फॉर कॉलिंग जियो, हाउ कैन आई, दिस इज जीवेशु, हाउ कैन आई हेल्प यू, वहां जितनी लर्निंग मिलती है उसके बाद जितनी लर्निंग अगले लेवल में मिलती है मैनेजमेंट की, क्योंकि अगला लेवल ही मैनेजमेंट का रहता है, टीम लीडर, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, असिस्टेंट मैनेजर, जो भी है, उसके बाद कोई लर्निंग नहीं है। उसके बाद वो वही रोल ग्लोरीफाइड है। आप बड़े बड़े लैपटॉप पे, बड़े बड़े कैबिन में, बड़े बड़े ईमेल पे, बड़े बड़े फेसबुक पे बैठ के सब तमाशे देखते हो और कुछ नहीं करते आप। तो वो मैं कर लिया था ना 16 साल, क्योंकि एजेंट से टीम लीडर बनने में 2-3 साल लग गए। उसके बाद वो टीम लीडर से असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर से सीनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजर से AVP से VP से डायरेक्टर, सब कुछ ग्लोरीफाइड था ना। केबिन बड़ा होता गया, लैपटॉप छोटे होते गए, बैग बड़ा होता गया, आवर्स बड़े होते गए, तनख्वाह बड़ी होती रही। तो आई वॉज ऑलवेज अ फनी गाय ऑफिस में भी। जैसे कि आई स्टिल रिमेंबर, मेरा वाइस प्रेसिडेंट जो था वो एक मीटिंग कर रहा था, उसका शीशे का कैबिन था और टाइटैनिक आई थी तब तक। तो आई स्टिल रिमेंबर, मैं उसकी शीशे भी जाके ना ऐसे हाथ रख के ऐसे नीचे ऐसे करता हुआ ले जाता अगर क्या कर रहा है यार, क्योंकि सारे लोगों की पीठ मेरी साइड थी, वो मेरी साइड देख रहा था। शीशे के बाहर कैबिन में मैं था, मैं ऐसे कर रहा, ऐसे वो जा रहा है और क्या चिचोरी हरकतें हैं तेरी। तो आई वॉज ऑलवेज अ फनी गाय, बट मेरा एक बहुत ही अजीज एक क्लाइंट होता था, तो आयरन मिंकस करके, अभी भी आज मेरा बहुत अच्छा दोस्त है वो। उसने बोला जीवेशु व्हाई डोंट यू ट्राई स्टैंड अप। मैंने उससे पहले स्टैंड अप सुना था, देखा नहीं था। तो अमित टंडन करके कॉमिक है, वो मेरे साथ काम करता था किसी ऑर्गेनाइजेशन में, वो बिजनेस डेवलपमेंट में था, मैं ऑपरेशंस में था। तो उसका रेस्टोरेंट होता था जहाँ पे ओपन माइक्स होते हैं। ओपन माइक्स मतलब जहाँ पे अगर तेजस्वी को जाना है या गौरव को जाना है, जाके ट्राई करना है, जैसे पोएट बनना है या कॉमिक बनना है, तो वो जाके अपना मटेरियल जो लेकर ट्राई करेगा स्टेज पे, या फिर कोई प्रोफेशनल कॉमिक है या प्रोफेशनल पोएट है, वो नया मटेरियल लिख रहा है, तो वो जाके देयर टेस्टिंग, राइट। जैसे कल जो शो किया देहरादून में, आई विल नॉट टेस्ट माय न्यू मटेरियल देयर, ऑफ कोर्स, विद पेइंग ऑडियंस। So I walked up on the stage, did my 2 minutes, I came out. Amit Tandon came, he said, if you do anything in your life other than this, you're ruining your life. Wow. That's it. Next day I quit my job. And why I could quit my job? Because बीवी नहीं, बच्चा नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, घर का लोन पेड ऑफ है, गाड़ी का लोन पेड ऑफ है, और लोन ऐसे मैंने कोई क्रेडिट कार्ड के लोन नहीं लिए हुए, कोई उधार नहीं देना, खाने के लिए पैसा है बैंक में, तो नौकरी छोड़ना आसान हो जाता है। तो ये जो होता है ना कि मैं पैशन फॉलो करना चाहता हूँ सब कुछ छोड़ के, वो आदमी सबसे पहले मरता है, क्योंकि भूखे पेट तो भजन नहीं होते गोपाला, धंधा तो क्या ही चलेगा। couldn't agree more. So वो बहुत जरूरी है। तो इसलिए हाउ डिड आई बिकम अ कॉमिक, बिकॉज़ आई वाज ऑलवेज द फनी गाय। क्योंकि जब आप बड़े हो रहे होते हो किसी भी करियर स्पैन में, कोई ना कोई होगा जो आपसे आगे होगा। Of course. तेजस्वी के लिए कोई एक ऐसा फोटोग्राफर होगा, वीडियोग्राफर होगा जो इससे अच्छा है, ज्यादा सक्सेसफुल है, ज्यादा फॉलोअर्स है, ज्यादा पैसे हैं, आपके साथ भी कॉर्पोरेट में रहा होगा, गौरव के साथ भी रहेगा, कोई ज्यादा लंबा है, कोई उसके पास ज्यादा सुंदर गर्लफ्रेंड है, ज्यादा अच्छी जैकेट है, ज्यादा अच्छे जूते हैं, तो उससे दिमाग में कॉम्पिटिशन तो आता है, लेकिन खुंदक बड़ी आती है, बहुत जलन होती है ना, बहुत गुस्सा आता है। तो गुस्से से या तुम जाके, अगर मेरा पसंद है तो मैं जाके उन सबके चांटे मारना शुरू कर दूं कि भूतनी के तेरी गर्लफ्रेंड मेरी गर्लफ्रेंड सुंदर कैसे है, या फिर छोड़वा दूं, या उनके घर में आग लगा दूं, या कोई चीज़ ऐसी करूँ उनके पास भी ना रहे। हमारा प्रॉब्लम क्या, हम अपने सुख से सुखी नहीं होते, हम दूसरे के सुख से दुखी होते हैं। तो मेरे सुख से दुखी होना बहुत अच्छा लगता था।
लेकिन सिंस मैं कुछ कर नहीं सकता तो उसके बारे में हंसता रहता था. तो हंसना was my defense mechanism to safeguard my own self, and that became humor. And amongst the current crop of stand-up comedians, and there are so many Correct. that you have the ability to. I watched, All of them, well, perhaps still not all of them, but many of them. Correct. Who do you consider as the ones who truly stand out? I don't give a shit. मेरी वजह से कल के मरते आज मर जाए. Why would I like my competition? I don't. I hope they don't exist. I hope their career goes and dies today. I hate anyone and everyone who can think of a joke that I can't think of. I can't think. And it's not in a maligned or a bad intention way. Why should I appreciate others when I should be investing that time in making myself better? Better. That is one. I like dead comics. उनसे मैं इंस्पायर होता हूँ कि वो मर गए हैं, क्योंकि वो कंपटीशन नहीं है. I'm a very competitive guy. If you think I'll be inspired by guys who are alive, no thanks. No thanks. No. I don't want to do the friendship with them. No, I am friend. So I don't hate them. Of course you do. See, when I say कि मैं चाहता हूँ कि career दफा हो जाए, आज मर जाए, I literally don't mean Of it. course. But if they don't exist, my life will still move, and I don't care. So why should I be inspired by others? Because I don't need to. Very interesting. Why should I get inspired by competition? No, I don't need to, because this is not a sport. This is a very solo art form. Of course. So the lesser the competition, the better it is. मेरी वजह से किसी को फॉलो नहीं करना चाहिए कॉम्पिटिशन, अपना पैशन. कोई मेरी वजह से कॉमेडी ना बने. सब मेरी वजह से मैयत जैसी शक्ल बना के हैं. सब के जोक घुस जाए, सब मौत फैलाएं स्टेज पे, ताकि जब मैं चढ़ूं तो सुपरस्टार बन जाऊं. Superstar. बिल्कुल क्यों नहीं? Why should I appreciate it? How do you describe the artist in you? Me artist, मेरे अंदर का आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा इनसिक्योर, बहुत ज़्यादा unsatisfied, constantly judging myself. I'm never happy with what. Like yesterday's show, you were there. Was that a good show? Of course it was. It was fun. I don't like it. I went back home realizing कि मैं 3 चीज़ें और अच्छी कर सकता था. So it is always a chase of something that I will not be able to have, the perfection. But I'm okay, because the day I reach that perfection, I will become very complacent. Indeed you do. For example, if there is a, sorry Tejas, you have a name, you know, if he clicks a picture, he's like, this is the best picture I can click. His growth is stopped Stop that there. day. He's done. So I cannot like my show to the best. Like कल मेरी wife ने मुझसे पूछा, how was the show? मैं and ये अलग बात है, बाकी के 200 आके मुझे 200 लोग आके पपियां कर रहे थे. Indeed so. But I will say, यार इसमें ये ठीक नहीं था. And she's like, तेरा तो रोज का प्रॉब्लम है, तेरे को हमेशा कुछ भी अच्छा नहीं लगता. But that is not in my personal space. I'm very content in the house I stay. I'm very content in the food I have. I'm very content in the car I drive. I'm very content with the bank balance. I'm very content with the way I look. But I will not be content with my art form, because the day I'm content or complacent about it, I'm a dead artist. So I'm very insecure. I'm highly unsatisfied or dissatisfied with my art form. Right. I'm constantly seeking attention, because stand-up एक ऐसा art form है जो बहुत ही solo art form है. It's such a self-centered, selfish and self-absorbed art form. Imagine करो कि मैं घर पे बैठता हूँ, मैं एक concept सोचता हूँ, उसके बारे में joke लिखता हूँ. मैं चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे अच्छे कपड़े पहने, टिकट खरीदें, पॉइंट ए से पॉइंट बी गाड़ी चला के, मुझे अपनी जिंदगी का टाइम दे और मेरे जोक पे हंसें. और जब आप नहीं हंसते, मैं कहता हूँ तुम कुत्ते के बच्चे हो. कितना सेल्फिश होना पड़ता है इसके लिए. मैं अपने आप से इतना ज़्यादा भरा हुआ हूँ ना, तो होता है कि जिस दिन मैं शो नहीं भी कर रहा हूँ, आई ट्राई टू गेट दैट अटेंशन टू मी. जैसे आज आपने मुझसे पूछा जब हम डिपार्टमेंटल स्टोर में घुसे, वो डिपार्टमेंट स्टोर की ओनर आई लहर, उसने बोला जीवेशु, या आपकी वो दोस्त आई थी घर पे जाकर विश करने, बोला आर यू जीवेशु. अगर वो नहीं बोलेंगे ना तो मैं घर जाके नस काट लूंगा अपने. This is actually very interesting, because Jeeveshu and I stepped out to a departmental store to buy something, and very rightly so, the owner of the departmental store, Leher, came up and said, "You're Jeeveshu, aren't you?" And of course, they had a couple of minutes conversation where she said she's a great fan. फिर जब चली गई वो, तो I turned to Jeeveshu and I said, "I have a question. Do you like the attention sometimes that you get when you walk into a store or walk into a mall or a shop?" And Jeeveshu was bang on. He said, "No, I certainly do. I love it, and I get worried if nobody is recognizing me." And it's as honest as can be. And if anybody were to say anything differently, I'm not sure it would be absolutely factual. Because, okay, if I think I should be a comic for my own self-satisfaction, why do we need a stage? Indeed so. Why do we need to do social media? Anything you do on social media is seeking attention. Of course. Any man who puts his body वाला picture up, देखो अपनी सेहत बनानी है ना, तो अपने पिछवाड़े में रखना, उसको अपने ड्राइंग रूम में रख, तो मैं क्या दिखा रहा है?
जब लड़कियां छोटे कपड़ों में डालती हैं, यू सीकिंग अटेंशन, यू सीकिंग वैलिडेशन. इट इज अ फैक्ट. यू लाइक इट, ग्रेट. यू डोंट लाइक इट, उसकी पिक्चर लेके अपनी दीवार में चिपका अपने बेडरूम की. इंस्पायर होना, वहां चिपका. हमें क्यों दिखा रहे? ये हमें क्यों दिखा रहा है? मैंने खाना बनाया, मैंने हगा. अरे नहीं कर रहा, हम भी खाना खाते हैं, हम भी खाना खाते हैं. तो क्या दिखाता रहा रोज सुबह शाम में? मैं नहीं देखना. बट सोशल मीडिया इज फीडिंग दैट लाइफ टू अस. Is absolute feed of it. So for me, the artist I have is very self-centered, very selfish, very self-absorbed, very dissatisfied, very insecure, constantly chasing something that I can't have, and constantly seeking validation. I'm always seeking validation. कि मुझे पसंद कर ले बस यार ये. It's a very desperate attempt to be liked. It's like a very massive way of saying कि my job is like a people pleaser. That is what my job is, a glorified people pleaser. I may lie about it. So आगे अगर कुछ आगे मुझे बोलता है ना, कोई जो ज्ञान बांटते हैं बाबा जी जो घूम रहे होते हैं 75,000 कि नहीं मैं अपने लिए करता हूँ, तो बढ़ जा भाई, तू अपने बेडरूम में बैठ के गाना करे, खुद रिकॉर्ड कर अपने गाने, खुद सुना अपने गाने, फिर बकवास करने की जरूरत नहीं है, मत मांग पैसे इसके फिर. So true. Yeah, and the other factor to that is that I'm constantly looking to be more successful, so I can demand more money. Of course. I'm very shallow. I want to like expensive watches. I like latest phones, latest laptops, latest cars, latest gadgets, anything money can buy. Flying business class, staying in luxurious hotels. Of course. I like it, and if I don't like it, then who will like it for me? Nobody. खत्म. तो मैं अगर अपनी जिस खाल में, जिस स्किन में मैं 46 साल से हूँ, मैं उसका ध्यान रखने के लिए मैं लोगों से वैलिडेशन मांग रहा हूँ, भाई तू क्या खाता है मुझे पता, मैं वेट लूज कर लूँ, तो फिर मैं वो तनख्वाह में क्यों नहीं करता? भाई तू क्या कमाता तो मैं अपनी जिंदगी ठीक कर लूँ, इसका वो लॉजिक नहीं है ना. So true. हाँ, तो मैं अपने आप को अगर अच्छे से ट्रीट नहीं कर सकता, हाउ डू एक्सपेक्ट यू टू ट्रीट मी नाइसली? आई विल टीच यू हाउ टू ट्रीट मी. Me. यू लाइक इट, ग्रेट, अदरवाइज टर्न अराउंड एंड वॉक फास्टर. So true. वेरी क्लियर. एज एन आर्टिस्ट आई एम दैट. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे वो 1 घंटा चाहिए. As Jeeveshu Ahluwalia, do you make a distinction between the artist Jeeveshu versus the person Jeeveshu who's sitting? We've spent the entire day together today. नो आई, मेरे ख्याल से मेरे पास वो है नहीं. है नहीं. मेरे अंदर वो काबिलियत है कि मैं डिफरेंशिएट कर जाता हूँ. Alright. सो आई एम समबडी हु इज लिटरली ऑफ एंड ऑन द स्टेज द सेम गाय. अब मैं आपके जैसे, मैं भी परसों कल जब मैं देहरादून आ रहा था, तो मेरे जो कल वतन ने जब ओपन किया शो, हाँ. हम एक ही जगह से हैं, मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर रहता है. Alright. उसने बोला जीवेशु भाई मैं आपके साथ जा सकता हूँ गाड़ी में? हाँ बिल्कुल जा सकता है, लेकिन मैं लेके नहीं जाऊँगा. उसने बोला क्यों? मैं बताता हूँ क्यों. पहली चीज, आप मेरे साथ इसलिए जाना चाहते हो क्योंकि आप चाहते हो कि हम आने जाने का खर्चा बच जाए आपका, जी. और रहने का खर्चा बच जाए, जहाँ पे मैं रहना वहाँ रह लेंगे. जी. लेकिन जब मैं जाता हूँ, मुझे गाड़ी में चलाते हुए नाक में उंगली डालने की आदत है. सिंपल मैं बता, नाक निकाल के मैं गाड़ी के ऊपर लगाता रहता हूँ, कहीं ना कहीं, या बाहर फेंकता रहता हूँ, सिगरेट पीने की आदत है. मैं बकवास कर रहा हूँ अभी. Obviously. लोगों को लड़कियाँ घूरने की आदत है, साथ वाली गाड़ी करते चलाए तो शीशा नीचे करके गाली बकने की आदत है. मुझे एक सर्टन तरीके के गाने सुनने हैं, मुझे कहीं भी जाके कॉफी पीनी है, कहीं जगह पे बैठ के खुजाना है मेरे को. वो सब अगर आप मेरी गाड़ी में होगे, वो सब मेरे को सोचना पड़ेगा. मैंने बहुत मेहनत करी यहाँ पहुँचने के लिए, मैं सोचने के लिए तेरे को नहीं बिठा सकता. तू तो काम कर, बस पकड़ लिया, ट्रेन पकड़ लिया, उसके पैसे मैं दे दूंगा. तेरा वही कॉन्सेप्ट है ना, तू पैसे भी जाना था, तो वो पैसे मैं दे दूंगा. लिए नहीं उसने मुझसे, लेकिन तू मेरे साथ नहीं जाएगा गाड़ी में. Wow. बस. When did this level of clarity, Jeeveshu, and I asked this question to you in a very considered manner, the level of clarity that you bring in your articulation, in when you speak, is, and I've been witness to this since yesterday, of course, and all of today, and towards the evening also. जब हम फोन पे बात कर रहे थे. जब हम फोन पे बात कर रहे थे. It's a level of clarity that very many people don't seem to very evidently bring up. When did that hit you? Is that this is the clarity I want to bring to my life? So I just corrected that. Everybody has that clarity. You're just worried as to what will they What think. they will think. The execution, perhaps from a lot of people, So is ये clarity आपको भी, तेजस्वी को, गौरव को भी, दोस्त आपका क्या नाम है? अभी ये नाम लिख गया पूरे 45 मिनट की वीडियो में. सुनील को भी क्लैरिटी उसको भी पसंद है. उसको किस तरह की दाढ़ी चाहिए, किस तरह के बाल चाहिए, किस तरह की शर्ट चाहिए. वो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, is what captures you, right? I don't give a shit. My only rule in life is if you put food on my plate, I will listen to your opinion. listen to you. वरना अपना opinions are like assholes, everybody has one and it stinks. I don't like it. और बहुत अच्छा गाना है, इस गाने से मेरी जिंदगी चलती है. कुछ तो लोग कहेंगे, सुना ना? Of course. उसमें एक लाइन है, तू कौन है, तेरा नाम है क्या, या तो क्या? सीता भी बदनाम हुई. हमने भगवान श्री राम और माता सीता को नहीं छोड़ा, तो फिर मैं और अब तो कहानी कर रहा हूँ. Name one person that you idolize. Name one. Anyone. Tejasvi, Gaurav, Sunil. Anyone that you idolize. Name one.
कोई तो होगा My ना? partner. हाँ? My partner. योर पार्टनर आइडलाइज नहीं मतलब यार आइडलाइज एज इन कि मतलब भगवान लेवल पे रखते हो उससे उसे भी ऊपर तो हाँ, मतलब उसके he is ऊपर है। everything to me. He is everything, हाँ, yeah. exactly. कभी उसके बाद देखा किसी को उसको गाली दे देगा किसी इंसान को उसको मैंने गाली- सर फाड़ दिया था. हाँ? सर फाड़ दिया. नहीं नहीं उसने गाली दी थी ना किसी ने उसे हाँ. हाँ जब आपके गुरु को किसी ने नहीं छोड़ा तो फिर आप कौन आपको नहीं मतलब देखो आप रिटेलिटी ऐसे करते हैं मैं उसकी बात नहीं कर रहा हम कबीर को गाली निकालते हैं हम श्री राम को गाली निकालते हैं हम अल्लाह को गाली निकालते हैं हम जीसस को गाली निकालते हैं हमने भगवानों को नहीं छोड़ा तो भाई तुम्हें गाड़ी में नहीं बैठने के लिए मैं तुम बोल ही दूंगा मत बैठ तुम मेरी गाड़ी में भाई ये बहुत छोटा सा आंसर है यार ये क्लैरिटी सबको है So true. और अगर सामने वाले को बुरा लगने का ठेका भी आप ही ने ले लिया तो भाई तो फिर उसके पास क्या बचा लोग क्या कहेंगे या लोग क्या सोचेंगे अगर वो भी मैं ही सोचूं तो फिर लोग क्या सोचेंगे So true. वो उनका काम है सोचना मेरा नहीं है तो Absolutely. वतन के साथ में आज भी उतना ही दोस्त हूँ कल भी मैं अच्छे से बात करके गया हूँ हम गले मिले हमने इकट्ठे खाना खाया हमने सिगरेट पी हमने सब कुछ किया इकट्ठे वो मेरी गाड़ी में बैठने से मेरा ज्यादा जिगरी दोस्त नहीं होता मेरी गाड़ी में ना बैठने से कम जिगरी नहीं होता बस वो क्लियर उसको भी होना चाहिए क्लैरिटी सबको है अर्जुन आप सामने वाले को क्या लगेगा इज व्हाट इज स्केयर्ड ऑफ Of course. सो आई एम नॉट That's fascinating. Jeeveshu. नो इट्स नॉट इट्स जस्ट इट्स वेरी क्लियर बिकॉज जितनी बार आप Which ये is सच simplified life. हाँ बिकॉज अगर आप जैसे किसी को कैसा महसूस होगा वो सोचने लग जाओगे ना फिर आपको हर बार वो कहानी याद रखनी पड़ेगी That is true. वो ट्रीटमेंट याद रखना पड़ेगा तो अगर मैं आपसे प्यार करता हूँ मैं आपसे प्यार करता हूँ नहीं करता तो मैं नमस्ते करके निकल जाऊंगा मुझे हर किसी को नहीं बैठना ना मेरे को It's like the old statement, na? I don't lie. I always say the truth because then I don't have to remember what I yeah said. because when you 3 lie you days have to back. start remembering things Indeed, sir. yeah करो No, fascinating. तो सुबह मैंने अपनी बीवी को मैसेज किया कि हाय आई डोंट वांट टू कम बैक होम टुडे आई माइट स्टिक अराउंड इफ आई गेट अ डिफरेंट होटल इफ आई डोंट गेट अ डिफरेंट होटल आई विल प्रोबब्ली कम बैक यू कॉल्ड course. समथिंग प्लान्ड आई सेड हाय आई गॉट द होटल या मेरे को होटल नहीं मिला तो मैं अर्जुन के पास जा रहा हूँ शी सेड ओके दैट्स इट अब मैं ये बोलूँ नहीं मेरे को ऐसा लगता है मेरी ना सांस में थोड़ी दिक्कत आ रही है मेरे को ना कल गाड़ी चला लूंगा मैं क्यों बकवास बजे करूँगा अगर मेरी बीवी को ये लगता है कि मैं उसको अवॉइड कर रहा था एक दिन के लिए भाई देन यू हैव You have प्रॉब्लम problems. आई डोंट हैव इट और आपका ठेका मैं अपनी गोद में लेके तो बिल्कुल नहीं चलने वाला So true. अपनी नहीं संभल रही हैं फटी में दूसरों की क्या संभाली घूमनी है Another big transformation that's happened in your life, which is to do with your weight. We've seen you virtually, which is on streaming apps and so on and so forth, at various stages. But your weight loss story is crazy, like almost 60 kilos. How did that? Why did that kick in? तो मैं उन लोगों में से था जो इसमें हजार बहाने थे फर्स्ट को ज्वाइन करेंगे 1 जनवरी मंडे ये सीज़न निकल जाए दिवाली पार्टी का सीज़न निकल जाए क्रिसमस न्यू ईयर 3 महीने की मेंबरशिप 6 महीने की मेंबरशिप पास वाला जिम आगे वाला जिम पीछे वाला जिम सोना वाला जिम स्टीम वाला जिम शावर वाला जिम 10 ट्रेडमिल होनी चाहिए 24/7 जिम मैं रात को 10 बजे फ्री होता है तो मैं 10:30 बजे जाना चाहता हूँ सब कर लिया था मैंने कुछ नहीं 19th March 2019 होता क्या कि नहीं एज आई वाज सेइंग कि somebody will be more successful than I am Of course. तो आप how tall are you I'm 6 feet 2 inches. 6 feet 2 there will be somebody who's 6'3" that year Of course. right? How old are you 47 I'm 47. there will be somebody who will be 46 I will know what watch do you wear Tag Heuer Yeah. अब कोई और होगा जो उससे महंगी घड़ी पहनेगा Indeed. आप जो गाड़ी चलाते हो उससे अच्छी गाड़ी चलाता होगा तो देयर आर लॉट ऑफ डिससैटिस्फैक्शन लेवल्स इन आवर लाइफ पर्सनल जैसे रिलेट पे गए कोई स्क्रैच मार के गाड़ी पे बत्ती नहीं आ रही घर पे जैसे हम बैठे थे शूट पे बत्ती नहीं आ रही थी जनरेटर की आवाज़ आ रही है बीवी से बहस हो गई माँ बाप से बहस हो गई कहीं पैसे आने अटक गए इवेंट बन रहा था हुआ नहीं तो ये कॉन्स्टेंटली एंग्री आई एम अ वेरी एंग्री पर्सन All right. तो जब मैं इतने गुस्से के साथ रात को सो रहा हूँ शरीर पे सारे कपड़े उतारता हूँ तो मैं नंगा होकर भी अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं करता वो मेरा प्रॉब्लम था All right. मैं अगर ऋतिक रोशन की जिंदगी में भी प्रॉब्लम आती होगी Indeed so. उसका तुम नंगा होता तो अपनी 6 पैक आप छू तो लेता है कम से कम यहाँ तो सामान नजर नहीं आ रहा है कुछ तो करना पड़ेगा वॉट इज दिस बिहेवियर जो मेरे हाथ में बाकी सारी चीजें मेरे हाथ में नहीं है ना none of that is in my hands जो मुझे बुरा महसूस करा रहा है बीवी से लड़ाई हुई माँ से बहस हो गई खाना अच्छा नहीं था पेमेंट आनी थी नहीं आई इवेंट जाना था नहीं हुआ फ्लाइट टिकट बुक नहीं हुई फ्लाइट मिस हो गई वो सब पास्ट है मैं चेंज नहीं कर सकता मैं भगवान नहीं हूँ और भगवान भी शायद समय पर नहीं बदल सकता अरे पीछे जाके यू कैन टर्न बैक You टाइम can't. बट व्हाट आई कुड डू फ्रॉम देयर ऑन आई कुड मेक एन इंप्रूवमेंट इन माई लाइफ So true. सो एटलीस्ट आई स्लीप बेटर Indeed. दैट्स इट सो मैं आज भी गुस्से में हूँ लेकिन आज मैं 60 किलो कम वाले बंदे को देखकर मैं गुस्सा होता है मैं कपड़े उतारता हूँ तो ऐसे ही चलता रहूँगा 20 किलो और जाएगा फिर मैं उतने ही गुस्से में रहूँगा शायद तो मैं चांटा ही मार दूँगा देंगे कि लेकिन तब मैं और 20 किलो कम होकर और ज़्यादा गुड लुकिंग वो मेरे को चाहिए और गुड लुकिंग होता है आप जो आदमी बोलता है ना कि ब्यूटी इज नॉट स्किन डीप वो सब अगली होते हैं ये सब बकवास बाजी है आप ये कौन सा कलर पहना है आपने
maroon. मरून है, Something like राइट. that. आपने मजेंटा पिंक क्यों नहीं पहना? नहीं पसंद आया ना. और कलर ने आपके गाँव खाड़ा था. तो कॉस्मेटिकली आप देख रहे हो ना. Of course. हेयर स्टाइल आप ऐसे क्यों कटाते हो कि आपको पसंद है? तो हम जो दिखता है तो आपको अच्छा लगता है. तो मुझे जब आप लोग बोलते हैं नहीं खूबसूरती ऐसी नहीं वैसी नहीं, घंटा बाबा जी का ये सिर्फ अगली लोग बोलते हैं. जो बदशक्ल बदरूप होते हैं वही बोलते हैं कि नहीं अंदर का स्किन देखो, क्योंकि तेरे पास ऊपर कुछ देखने को नहीं है साले, इसलिए अंदर देखो. या फिर पैसा ही सब कुछ नहीं. गरीब आदमी बोलता है पैसा सब कुछ नहीं क्योंकि उसमें होता नहीं है. अमीर आदमी को देखा पैसा कुछ नहीं, कभी बोलते देखा उसे? नहीं बोलता. क्योंकि वो जिस दिन बोल देगा वो ये डर रहता है दिन में कोई सरस्वती बैठी होती है, सच आ गया सच ये ना हो जाए. नहीं. सो आई जस्ट वांटेड टू बी cosmetically good looking to myself. As bare naked truth as I can get. Yeah. Why not? And you've got diabetes also. I've got diabetes, so I've not taken diabetes. Obviously, health issues तो बहुत सारे थे. मेरे को diabetes, blood pressure, hypertension, cholesterol सब कुछ था. मेरा diabetes was at I think about 8.1, 8.2 HbA1c. Now it is 5.7, which is pre-diabetes. Lovely. मैंने diabetes दवाई January 2020 से नहीं ली है, and it is what December 2023, 3 years now. 3 years now. Yeah. My sugar is always ranging at 110 to 112, 17, 18, 108, मतलब, which is normal healthy sugar level. I don't drink anymore. I don't eat red meat anymore. I don't eat oil anymore. I don't take sugar anymore. And हाँ मुझे दुनिया ज्ञान बांटती है. एक ड्रिंक से कुछ नहीं होता, एक लड्डू से कुछ नहीं होता, शरीर में चिकनाई जानी चाहिए, अगड़म जगड़म भागम, ये बकवासबाजी. तो सुनता सब क्यों मैं, किसी को मना नहीं करता मैं अपने मन की हूँ. तो बोलते हैं. This is fascinating, but Jeeveshu, I do have a view on the clock, and you've been very kind and considerate. Apart from all of this, what are other interests that you truly like pursuing in life? One is pursuing money wale interest, which is like writing ads, acting in TV series, acting in movies. So one is I'm driven with a lot of finances in mind because मेरे को पैसे की बहुत कमी थी जब मैं बड़ा हो रहा था. Of course. That is one thing. Two, other than that is I like traveling. Largely, I like traveling. When I say traveling, I'm not like if I go to Barcelona, I wouldn't want to go anywhere, but I'll walk in Barcelona. Indeed. Like एक हफ्ता 2 हफ्ता मैं walk करूँगा वहाँ पे. मुझे खाना बहुत अच्छा लगता है. अलग कुछ मुझे movies देखना बहुत पसंद है. I live my life in movies. So I'm one of those guys who will imagine myself in a movie. जैसे मैं कोई सुपर हीरो मूवी देख रहा हूँ तो मैं अपने आप को आयरन मैन बना लेता हूँ 1-1.5 घंटे के लिए. Because असल जिंदगी में नहीं जी सकता, तो I transfer sort of myself there. But only horror is what I don't watch. I watch a lot of documentaries. I read a lot of books. Yes, that's something very interesting. Couple of books that you've read lately that you found truly mind-blowing. Autobiographies, man. I love when people are bare. Like Mike Tyson ki Undisputed Truth that we were talking about. Amazing book. Andre Agassi ki Open. It is fantastic book. Diego Maradona ki Diego. Because all of these, like Mike Tyson, was a guy that you will never imagine will amount to anything. जब वो 12-10 साल की उम्र में, when his mother was a prostitute and he was selling drugs, there is no way you would have imagined he'll be the world heavyweight champion. Diego Maradona, from where he came, there is no way he would have been a Diego Maradona. I love those stories because I shift myself. I was Diego Maradona for those 435 pages. I was Mike Tyson for 838 pages. By the time जब वो जिसमें कुछ ऐसे कुछ बता रहा था, मेरे कई बार ऐसे fist बन जाता था. I'm not even there, right? I'm not there. But I want to be there. So that is for me is a very good thing. So read documentaries. Netflix पे मैंने कम से कम कुछ तो 800 डॉक्यूमेंट्री देखी होंगी बड़े प्यार से. Netflix या YouTube पे या Amazon जहाँ पे भी. And I like a lot of movies. I like to spend a lot of time with dogs. Yeah. Stray dogs, indie dog shelters. This is what I do. In closing, as we're almost at the end of 2023, when you look at 24 and beyond, for a few years, if not 20, where do you see yourself going? I don't. You don't? No. Can you guarantee me you will get up tomorrow morning alive? We had this conversation. Yeah, you can't guarantee. तो बहुत एक अच्छा शेर सुना था मैंने कि बहुत ही नादान सी चीज है ये इंसान, कल का पता नहीं वादे परसों के करता है. So I don't see 2024. I'm happy I'll sleep tonight. Yes. And I'm thankful that I'll get up alive tomorrow. बीच में मैं सब कुछ कर लूंगा जो मुझे करना है. If I don't get up tomorrow, thank you very much. It was a great time serving you guys. It's very simple. I will not even promise day 2. That's true. Yeah, please. इससे वो तो लकड़ी जो बेच रहा था उसी जिंदगी सबसे बोल रही थी. Catch one, my friend. See, this is what. Yeah. नहीं. So, let me sleep tonight. Let me get up tomorrow morning. बीच में I will do everything I want to do. If I don't get up tomorrow morning, I'll die a very happy man. Very happy. Very, very
fascinating and very inspiring.